see the businesses very closely, being with the owners directly, working with them. So, particularly with this Mukesh Ambani and Anil Ambani case, because I worked for almost a decade with the Mukesh Ambani group. Mhm. So, so that time the split already happened. When I joined, the split already happened actually. So I still remember the cafeteria. Still, it was not bifurcated. It was so I was going to have coffee in Mumbai, their office. So they said, no, no, ये this कैसे? is Anil Ambani. So I moved to another table. I said, okay, okay. So, so you see, without his to business hota nahi hai. And with the Mukesh Ambani and Anil Ambani cases, Mhm. he was given the sectors which were may not be that, uh, how to say, the growth was not taking place in that manner, the way the petrochemical business was taking off that particular time, which Mukesh, it is a kind of a, how to say, bit of a mismanagement for sure, and creating a goal which is not achievable, or thinking something big which is not really practical. So this sort of things has happened with Anil Ambani group. Otherwise, Anil Ambani is also very dynamic and dynamic businessman, and probably he will again come back. This is my feel that it always happens with in many businesses that people go to the lowest level and they again come back. So my personal take that he will again come back. How and what, probably we have to see. But रिस्क तो देखो लेना पड़ता है. एंड इनके केस में क्यों ऐसा हो गया, why one brother kept on moving up and why another. So I think he got little distracted, whereas Mukesh Ambani was very much focused on the operation, operational efficiencies, operational excellence, and he got little distracted, carried away with some political parties that, Bollywood, etc. So I think that has happened, and a sort of mismatch. Mhm. Okay. Hey Vishal, I would like to just place some important. I would like to just give some inputs about risk because we're discussing about risk over here Yeah. now. Sure. So there are basically just two types of risk. So one risk is basically what we call it as a calculated risk. So calculated risk is very much which is already like whatever you have your figures, you're going to take as per that. So that is calculated. So where you know that you're not going to go wrong. So ठीक है, अभी risk लेना है. Whatever investment you have to do, you have got the backup. You have the the banks, the finance, and all that. So that's a calculated risk. Second part is that normally whenever you're taking a risk, you are basically seeing your capacity of finance, then only you're taking a risk. Suppose if you don't have the capacity to take that much risk, you will never take a risk if you are wanting not to fail. But then if you want over ambition, again, if you take over ambition, and again then risk doesn't come in the picture, then you're in a different level. And that's what is there. Now coming back to this suicide thing, I also remember that Coffee Day, Mr. Siddharth, he was one of the major example of this. He was so good. I mean, everybody knows the story of Coffee Day, how he developed, and Siddharth, how he did, and how I mean, it's give a big competition to all the best coffee chains in the world. Basically, he had his whole module of business setup was very much. First time in India, and for the world itself, he was the biggest and all that. So if you see his also, he got entangled in an income tax web with politics and all, where he had to pay a lot of dues and all, and politicians' money. So that's what created him
to under pressure to suicide. There are certain cases which I have also seen recently about this suicide thing. So there are a lot of reasons for that. But as you say, pressure, and if you are not being able to take take the pressure on yourself due to various reasons, you would probably think of not living, and think of leaving everything. So that is the only reason for suicide. In this. Mostly that's how it happens. Coming back to risk now, between both the brothers, Mukesh was always overshadowed by his father and always given a lot of preference and all that. Yes, sir. So he got the big chunk, and he tried to take advantage with all that. So that's why he was way ahead. He could take more risk. And now also, I was just reading yesterday where he has bought preferential shares, and he's got, I think, 49% still the family holds. And in all these times, he's got investment, I think around 8 times or something like that. And he's got a lot of money also coming out. So that's how his risk basically is. Whatever risk he's taking is, of course, it's public money, but still, its calculation is there. He's got good people to back him up. He's got a good what do you call the advisors who was just telling him, okay, fine, this is what you got to do, and you got a whole team behind it, according to me. Over to you, Vishal. Yeah, okay. Yes, Neeraj wants to add something. Please, Neeraj. Yeah, Vishal. So I would just want to start from where Dhirubhai Ambani left. So when divided, the kind of share each brother was having, so Mukesh Ambani was having something around 43 billion, and Anil Ambani was 42 billion. और उसके अलावा भी the speculations in the market were that Anil Ambani is going to make it big. फिफ्थ और सिक्स नंबर पे था शायद उनका वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट उस टाइम पे जो थी. मुकेश वाज फिफ्थ एंड अनिल वाज सिक्स्थ. तो क्योंकि अनिल अंबानी को जो सेक्टर्स मिले थे एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड सनराइज सेक्टर्स, लाइक रिलायंस कैपिटल, और जिसमें रिलायंस का जो कम्युनिकेशन वाला जो था वो तो था ही सबसे बड़ा. इसमें एक मेजर जो जिसकी वजह से रिलायंस मोबाइल चला था, द टेक्नोलॉजी विच दे वर यूजिंग, आई जस्ट वांट टू टॉक अ बिट अबाउट इट. सीडीएमए को लेके आए थे वो इंडिया में, एंड सीडीएमए वाज वे चीपर देन द अदर टेक्नोलॉजी, जो भी जीएसएम टेक्नोलॉजी जो भी था. उसमें खर्चा बहुत कम था, और वही उनका उस टाइम पे जो विनिंग सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी रिलायंस के लिए, कहीं ना कहीं उसी टेक्नोलॉजी की वजह से बाद में अनिल अंबानी को बहुत बड़ा ये झटका लगा. क्योंकि सीडीएमए का सबको शुरू से पता था कि जो जब 3G 4G सर्विसेज आएंगी और ये सारी बैंडविड्थ बढ़ाने की बातें हो रही थी, डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस जा रहा था, तो सीडीएमए कांट सपोर्ट दैट. सीडीएमए में वो नेक्स्ट स्टेप नहीं है, और जीएसएम इज कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रोइंग टुवर्ड्स 3G 4G एंड नेक्स्ट 5G. तो उस वजह से जो वो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो सीडीएमए उसको पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली चैलेंज था वो उसके लिए. और अनिल अंबानी उस हिसाब से उस चीज को मैनेज नहीं कर पाए, उस हिसाब से अपनी प्लेटफॉर्म्स को इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो चाहिए थी उस टाइम पे वो नहीं कर पाए, और somehow वो डेब्ट सर्कल स्टार्टेड. he also took loans from various Chinese banks, और वो सारा सर्कल स्टार्ट हो गया, जिसके बाद वो फंसते चले गए. उन्होंने एक दूसरा मेजर जो मिस्टेक किया वो किया कि अननोन टेरिटरीज में जो उन्होंने घुसने की कोशिश करी. वन वाज लाइक डिफेंस. उन्होंने एक कंपनी होती थी पिपावैव समथिंग लाइक दैट, मेरे को अच्छे से उसका नाम पता नहीं है क्या था. he bought that company, almost $1 billion की वैल्यूएशन थी उस कंपनी की, एंड देन रीनेम्ड इट टू रिलायंस डिफेंस और समथिंग. और उसको क्योंकि वो एकदम नया सेक्टर था, कभी रिलायंस ने पहले उसमें काम भी नहीं किया था, और दूसरा उनका फोकस जो श्यामा सर ने भी कहा है कहीं ना कहीं ये सब पॉलिटिशियंस वगैरह के साथ, अमर सिंह वगैरह के साथ, और फिर उधर एक जमाने में सीनियर बच्चन ऑल्सो की
मेरे छोटे भाई हैं, वो जो सब आपके पैसे के साथ जो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, तो उनमें वो उलझते चले गए। और जो उन्होंने वो डिफेंस वाला बिजनेस फिर खरीदा, वो कुछ ही टाइम में 90% वैल्यूएशन उसकी चली गई। 100 मिलियन के आसपास की कंपनी रहेगी वो, जो कि 1 बिलियन में उन्होंने उस टाइम में बाय किया था। तो कुछ गलत डिसीजंस, कुछ टाइम के साथ चेंज ना होना, और कुछ काइंड ऑफ फोकस दूसरी जगह है, जो कि आपके बिजनेसमैन को हमेशा बोला जाता है कि पॉलिटिक्स से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। आपके लिए सब पार्टीज बराबर हैं। टाटा कांग्रेस को भी उतना ही फंड देता है जितना बीजेपी को देता है। तो उस तरह की उन चीजों से थोड़ा सा वो अलग चले, और कहीं ना कहीं उन सब में फंसते चले गए। Okay, Atul sir, please. Yeah. हाँ, तो मैं थोड़ा सा लाइट वे में एक कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। कोई ज्यादा होपफुली को सीरियसली नहीं ले जाता। यू कांट हैव एवरीथिंग। तो एक भाई, दो भाई होते हैं, फैमिली में भी जानते हैं, या इवन हमारे स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट में जानते हैं, कि एक बैठ के रात बैठ कर प्रोजेक्ट का बना रहा है, सारा रिसर्च कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फील्ड में या बिजनेस में सेल्स के लिए इधर उधर दौड़ रहा है, भाग रहा है, और एक बैठ के पार्टीज में जा रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ। तो अनिल भाई अंबानी ने टीना मुनीम पे फोकस किया, और इधर से जब तक ये उनके जो बड़े भाई मुकेश भाई ने अपने पैसा कमाने पे ज्यादा फोकस किया। तो एक पैसा कमाने पे एकदम ऑब्सेस्ड थे मुकेश अंबानी, और अनिल अंबानी बॉलीवुड और जो होता है कि मतलब कि बाकी सारे पार्टी वार्टी में ज्यादा बिजी हो गए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि शॉर्ट वे में ये समझा सकती पर्सनालिटी डिफरेंसेस, कि एक को मीडिया ग्लैमर, पार्टीज, बॉलीवुड, हॉलीवुड, उस पे वो ज्यादा थोड़ा भटक गए, और मुकेश अंबानी थोड़े बोरिंग इस मामले में थे। उनका लाइफ देखो तो रिलेटिवली सबसे बड़ा रुपया भैया पैसा 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 कमाना। तो जो ऑब्सेशन होता है पैसा कमाने का, वो मुकेश अंबानी में था। और आपस में भी जब इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो अल्टीमेटली एक और लेसन था कि जब अनिल अंबानी की बिजनेस पूरी बैठ गई, तो अल्टीमेटली फैमिली का कितना रोल है, कि इनकी मम्मी ने इन दोनों भाइयों को आपस में मिलाया और बोला कि छोटे भाई को मदद कर दो टाइप से, तो हुआ। तो वो सारे एक और फैक्टर लेकर कि आपके रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। आप बिलियनर हो या ट्रिलियनर, डजंट मैटर, बट अल्टीमेटली आपका फैमिली और फ्रेंड्स भी बहुत काम आता है आपके। तो आप किसके साथ हैंग आउट करते हो, प्लस आपके माँ बाप या आपके दोस्त, सब लोग इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो आज मुकेश अंबानी ने हमेशा पारिवारिक रहे, फैमिली पे काफी ध्यान दिया, दोस्तों पे ध्यान दिया। अनिल अंबानी थोड़ा खुद पे ज्यादा को फोकस हो गया, और उसके चलते उनको ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और उनके साथ मुसीबत के समय ज्यादा लोग भी उनके साथ नहीं आए। अमिताभ बच्चन, अमर सिंह या कोई भी उनके साथ मुसीबत के समय में वैसा नहीं आ पाया जो मुकेश अंबानी के साथ सब नहीं, क्योंकि मुकेश अंबानी सक्सेसफुल है, पैसे भी हैं और सब कुछ है। सो ये मेरे को लगता है कि एक सोशल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर तरीके से ऐसे इसको समझा। ठीक है, तो ये तो हो गया लाइक जनरल। थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक्स पे आ जाते हैं, या रादर लाइक break into fundamentals. So let's say when Anil Ambani started losing out, तो आई थिंक बहुत सारे बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि मैं गिर रहा हूँ। बट आई डोंट नो उनके केस में ऐसा हो पाया है नहीं। मुझे जैसा समझ में आया, उनको बहुत लेट से समझ में आया कि कि मैं गिर रहा हूँ, एंड आई नीड समवन टू हेल्प मी एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड एक चीज और देखा है मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में, कि हमारी रिस्क एपेटाइट it's like becomes like 0 to infinity kind of that trajectory when we pursue entrepreneurship. तो एक क्या बोलेंगे, एक नशा जैसा भी हो जाता है ये चीज, that we tend to put more money and money ki, with the hope that okay we might recover. And I don't know, probably someone might recover also. I'm not sure. I think even Mukesh Ambani case, the JioSIM was a very big probably very big gamble.
So anyway, Saurav, what's your take about this risk appetite? Like तुम्हारा भी story तुमने सुनाया था. You were almost zero balance at some point, and then you found ways to bounce back. But you know that very time, that very day जब लगा कि आज सब कुछ खत्म हो गया या अब पता नहीं क्या होगा या whatever. How was the that emotional fluctuation, and how did you like control things? Yeah, please. Yeah, what do you think about this? So I think मैं ज्यादा मुकेश और अनिल अंबानी के बारे में नहीं बोल पाऊंगा because I don't have much data, and I completely agree with all the previous speakers कि I think Anil got distracted rather than risk. मैं नहीं बोलूंगा, मुझे थोड़ा सा distraction लगेगा मीडिया में और ये सब में उनका फोकस चला गया. रिस्क तो दोनों ने लिया क्योंकि इतना बड़ा हाई लार्ज स्केल में बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिस्क है. सो रिस्क में कोई कंपेयर नहीं कर पाएंगे बिटवीन अनिल एंड मुकेश. दोनों आर एट द सेम प्लेट. आई थिंक द फोकस थोड़ा सा सही नहीं रहा अनिल के साइड से. नाउ कमिंग बैक टू रिस्क पॉइंट, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये बोल सकता हूँ कि there have been more than couple of times where we were just down and out, and somehow we were able to survive. So I think risk appetite is directly proportional to what you want in life. So जैसा I think अतुल सर ने बोला कि मुकेश को पैसा चाहिए था तो पैसे के पीछे भागा, इसको मीडिया चाहिए था, लाइमलाइट चाहिए था तो ये उसके पीछे भागा. That was a personal choice. Similarly, I personally feel with whatever little I have done in my entrepreneurial life, रिस्क आप उतना ही लोगे जितना आप चाहते हो अचीव करना. सो मैं चाहता था कि मेरी कंपनी नहीं बंद हो, या मैं फॉर एग्जांपल जब मैं ऑप्टिकल में आया, सो रिटेल में आया, सो आई डिडंट, वो मेरे लिए एक रिस्की था. मतलब कि दुकान तो पिछले 50 साल से बंद हो रही थी. हर महीने हजारों दुकानें बंद होती हैं बिकॉज बिजनेस सफर कर रहा है. प्री कोविड और पोस्ट कोविड डजंट मैटर, बट बिजनेस ऊपर नीचे चलता रहता है. रिटेल बिजनेस तो वैसे भी ऊपर नीचे चलता रहता है. बट मैंने सोचा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है टू एंटर इनटू रिटेल. आई वुड हैव नॉट एंटर्ड, और ई कॉमर्स में चलाता रहता जैसे भी चल रहा था, प्रॉफिट में या लॉस में. बट आई वांटेड समथिंग, that is why I took that amount of risk. Sometimes it pays off, sometimes it doesn't pay off. उसके अपने reasons होते हैं. There are many factors, internal and external, कि आप successful किसी business venture में होते हो या नहीं होते हो. लेकिन I think risk is directly proportional to what you want from yourself or from life. So this is fine. What I would like to ask in a more digging on the risk, कि risk appetite, like in my case also, I see कि like 2.5 years ago, I couldn't take as much risk as I can take now. So my risk appetite started to, so I was in corporate job for 8 years almost, okay, or like 11 years I lived abroad till I took this plunge in entrepreneurship and all. तो शुरू में जब मैं when I came back to India, I was a very conservative कि हाँ इंटर्न्स भी लेने हैं तो इतने कम कहीं लेना है, ये है वो है, कैलकुलेटिव कि खर्चा ज्यादा नहीं करना है, ये है वो है. बट देन स्लोली आई रियलाइज कि ऐसा तो मेरा टाइम वेस्ट होता चला जाएगा. एंड समहाउ आई कुड रिलेट माई सेल्फ विथ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो. जब मैं हर महीने इस टाइप का सैलरी विड्रॉ करता था, अब मैं महीना ऐसे ही गुजार दूं कि मेरे को इंटर्न वो 5,000 वाला मिल जाए इंस्टेड ऑफ 10,000 या 15,000. So I am actually losing that salary in some ways and all. So ऐसे करके थोड़ा थोड़ा increase होना हुआ. फिर मैंने ये देखा कि like if I am committing something to somebody, then no matter what I should fulfill it. अगर उसमें मेरा थोड़ा ज्यादा भी खर्च होता है तो still I should go about it. I think that is what will build the brand and things like that. And so this triggered that risk appetite increase. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके my risk appetite started to increase, so I could take, let's say,
more tension in my life, और ज्यादा मैं पैसे से थोड़ा हट के लॉन्ग टर्म विजन में जाने लगा धीरे धीरे. तो दिस इज लाइक माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स, but this is what I preach also to a lot of people like students who are not into entrepreneurship, कि भाई एक entrepreneurship try करो, क्योंकि तुम्हारा जो रिस्क एपेटाइट है ना, जो इतने डरे हुए हो, सहमे हुए हो ना, कुआं का मेढक बने हुए हो ना, एटलीस्ट तुम्हारा कुआं का डायमीटर बहुत बढ़ जाएगा. So sorry, yeah. What do you think about this behavior? I'm pretty sure you might have seen this behavior in you also, maybe at not that pace maybe. हाँ, please. Unmute करना होगा सर, please. फिर बाकी लोग से भी लेते हैं I think feedback. I completely agree with what Vishal said. एक entrepreneurial journey में risk appetite बढ़ता है with the successes you keep having. तो let's say मैंने first time पे एक X amount of मैंने 100 मैंने X का risk लिया, if we quantify it as X, and if I उस risk का अगर output मेरे को positive मिला तो मैं next risk X plus Y का लूंगा. I don't think I would take a risk X minus Y. And then if I again taste success, it is like आप शेयर मार्केट में पैसा डालते रहते हो और आप जीतते हो तो फिर पूरा पैसा डाल देते हो. It is something of that sort. So I completely agree. Having said that, I have another version of risk. When you start any startup, मुझे ऐसा लगता है कि risk is just a state of mind. Actually risk कुछ है नहीं. अगर मैं अपना personal बताऊं, तो I was drawing a handsome salary when I was in KTM, and when I started मेरा अचानक से salary 0 हो गया. But again, पैसा is just a resource. State of mind. Again, a state of mind. हाँ. Yeah. And पैसे is a tool to do something. So जब मेरे पास पैसा था या फिर जब मैं salaried था तो मैं क्या करता था, मैं hotels में जाता था. Let's say मैं 5-star होटल में खाना खाने गया. डेली तो 5 स्टार में जा नहीं सकते, तो बर्थडेज में और जो भी ये इवेंट्स होते हैं उसमें 5 स्टार में जाता था. नॉर्मल डे शॉपिंग जाता था वाइफ के साथ, मूवीज जाता था, रेस्टोरेंट जाता था, गिफ्ट्स लेता था, स्पेंड करता था, बार में जाता था, दोस्तों के साथ पीता था. ये सब चीज हम सब करते हैं, एंजॉय करते थे हम लोग. बट मैंने ये देखा कि जब मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे नहीं लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा चेंज किया अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स में. मैं शुरू से ही अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदता था. या तो मेरे कपड़ा जब मैं शादी से पहले पेरेंट्स ले आते थे, या फिर अब मेरी वाइफ ले आती है. तो मैं कपड़े में वैसे भी पैसा नहीं बर्बाद करता हूँ. तो मेरे पास बचा क्या, मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का मुझे मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक हूँ. तो मैं मुझे वो सब चीजें पसंद होते हैं, वो सब मैं रखता हूँ. और मेरे पास सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो मेन दुनिया भर में है वो सब है मेरे पास. So otherwise मैं जब मैं स्टार्टअप किया उसके बाद भी मैं 5 स्टार इवेंट्स में जा रहा था. I was flying by plane, okay maybe on company's expense, but I was still doing that. मैं अच्छा खाना खा रहा था, मैं अच्छे गिफ्ट्स खरीद रहा था, मैं अच्छा कपड़ा पहन रहा था. तो एक्चुअली ये जो रिस्क है ना, ये रिस्क मेरे लिए रिस्क was only a word, and my lifestyle didn't change. आज भी after 3.5 years I'm चलो ठीक है. So a lot of time I was not able to draw even that salary जो मैं last Paytm में draw कर रहा था some time back. But still मेरे spending patterns में या lifestyle में change नहीं हुआ. तो risk मेरे point of view से is just a word, and it didn't have too much of impact. Maybe because I come from a stable family economically. मेरे को उतना कुछ नहीं रहा है. My father has been a government servant. My mother has been a wife, housewife. हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ऐसा मेरे को दिक्कत नहीं रहा है. बहुत एंटरप्रेन्योर्स को होता होगा when they stay away from home and they are not very financially secured. So हम लोग so for me risk does not have any meaning in my life. Okay. Yeah, Mr. Manpreet, you have been in business for a while. I think you gave some initial remarks. So the thing that I quoted and Soro sort of agreed. Do you also have this agreement that risk appetite starts to increase as we plunge ourselves more and more into business and things, and we want to actually try a lot of things, and somehow एक thinking रहता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा types. What do you think, Mr. Manpreet?
This is for me, is it? Yeah. Your comments. Okay. I mean, once Yeah, you yeah. So basically, risk basically क्या होता है? Risk is again very first of all, as you say, it depends on your capacity, and second is that Mhm. it depends if you I mean, as you say, you get used to it. Like suppose if I'm taking a risk of a certain amount and I've got the profit, then next time I'll say, "Arey, wo mera kaam ho gaya hai. Let me try this." So then you are basically you're increasing your risk factor to whatever volume or to whatever number or to whatever this thing, because you've got a profit. Mhm. But in the other end, if it doesn't work out and you probably it covers into a loss or something, then also many people don't stop trying it. They'll say, "Oh, chalo pehle piche itne mein ho gaya tha, now we'll reduce it, we'll take a risk, but of a smaller volume or smaller money or whatever is there." But dynamically, if you want to do business and if you're not being able to take risk, I would recommend that you are not successful in business until you take a risk. Mhm. So if your calculation is right, it'll definitely pay you up. And all businesses have got different risks. Like if you take a certain business module where your investment is less and your turnover is less, so of course the risk will be less. And another risk factor is if you're converting or if you're changing your whole business setup, like from partnership to private limited or from private limited to limited, then of course the risk again goes maybe I think what 5x, or depends what type of capital and what type of money you're investing. And I would recommend that yes, definitely you should take a risk, but make sure that the risk, whatever you take, it should be in your capacity to to make sure that you still stay afloat. I mean, you don't really have to be insolvent or be this thing. Another factor, what I would say, depends on your consultant and your people around you, how they are, like your managers or your accounts financial consultants or your auditors, how they are advising you. If they are giving you the right advice, so definitely I don't find that you'll go wrong. But it's a gut feeling of the business owner who normally takes the call about it. And another thing is, if he's as coming from a business background, or which is not much, because I don't find many people coming from business background in India, as in other countries, like if you take Germany or America also. I mean, Germany has got a lot of family businesses which are more than 70 years or 100 years old, third generation, fourth generation. So like there's one company with which we work in Austria, and now it is the third generation who is managing the whole business. They're doing a good job. They've expanded. They've taken risks. They've set up factories in China. They've set up factories in India. They've set up everything. So they're not, again, they are taking risk and they are growing, developing, which is a good thing. So in startups and the new first generation, they also take risk. But I would advise, or I would recommend that they should take a smaller risk, or they should take a risk in their in a different gap. Like suppose if in 1 year, if you are taking a risk, it could be just one time in a whole financial year, or people would normally take risks 3 times in a year, depending. First quarters, okay, let's catch up in the second quarter, take another loan or take another risk. So that depends on what type of what type of bottom line you're looking for. And so I think that's my experience and my take on risk. And further, we can discuss further. Neeraj has some comment. Please, Neeraj. okay, go ahead, Neeraj.
I have a question. जैसे अभी तक हमने बात की कि रिस्क आप करके देखोगे, उसके बाद फिर आपका एपेटाइट बढ़ेगा, या you will keep on increasing after learning and after gaining or losing, whatever. रिस्क को कोई सीखने का तरीका है क्या? आपका जो इकोसिस्टम है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, या आपका अपब्रिंगिंग है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, वहां से रिस्क का कुछ जो आपके दिमाग में रिस्क लेने की कैपेसिटी है, उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, या किसी तरह से रिस्क को सीखा भी जा सकता है? Yeah, Yeah, Saurabh, maybe basically. Okay, I'll answer the question. Please, I'll Balkar. answer. Yeah, sorry, I'll answer the question. Yeah, so basically risk ka jo hai, there's no school or there's no class which will teach you risk, because it's your own gut feeling, because when you're taking a risk yourself, and you're answerable, you're responsible. People who don't take responsibility, they will never take a risk. Number one. Number two, risk, it starts in a very small way. Like if you are starting a business, start with a small risk first. Maybe you might take risk in thousands of rupees, or maybe in a lakhs of rupees. See how it works. If it works good and you find that you have success, then take another risk, which is a little bit higher compared to your previous this thing, and then learn with that. But the only bottom line is that your calculations and your numbers or your risk, this thing should all be very, very correct from all angles. You know, when you take a risk and you don't calculate from, say, like I'll give an example. Like if you're taking a risk in business for maybe like, you know, advertisement. Okay, so you just want to advertise for a certain amount of money which you don't have, or which you know it'll be risky for you, but then you think, or if I give that ad, maybe I'll get 4x business, or you know, some good business with which, you know, later I can pay and I can borrow and all that. So you've not forecasted certain risk, like, you know, that particular ad what you're going to take, it's not going to be going to the right circulated people, or it's not going to be at the right time of the market or to the right segment. So that is when your risk is not calculated properly, and that is where you might go wrong if you go wrong. So that is the thing. And third, the answer about your question is that normally if you're from a family of business background, then they are used to taking risks. So, you know, you're aware that what type of risk is going to happen. Like there are many risks. So that there could be some risk about labor. You know, you're employing like maybe 100 people, and suddenly you say, look, I need to go and employ another 20 people, or maybe another 50 people. So you're taking a risk of employment where you're employing. So there your salaries are going to increase from the next month or whatever. So that's again a risk. You've employed the people, but you don't have the money to pay. So that's when again you have another challenge over there, you know. And then the people are working, you can't remove them also. So, you know, that is very important. So in a business background, you normally know with an experience previously with the previous generation or previous this thing, that, you know, this did work or it didn't work accordingly. Yeah. So any other questions? Yeah, Saurabh has some comment. Please, Saurabh. Yeah. So risk can be taught, self-taught. I'll tell you how. रिस्क ना बहुत तरीके के होते हैं. आई थिंक व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज पैसे का रिस्क. पैसे का रिस्क इज नॉट द ओनली रिस्क व्हिच हैपेंस इन द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल, मैंने ऋत्विक के बारे में बताया था. ऋत्विक ने रिस्क लिया 2 साल का ड्रॉप आउट, अपने एजुकेशन का रिस्क लिया. तो स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, स्टार्टअप शुरू करने के लिए ना यू नेवर नीड मनी. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. क्योंकि डे 1 पे तो यार आप रिलायंस नहीं बनाते हो. डे 1 पे आपका एक गैराज होता है, एक शॉप होता है. उस शॉप में आप सब्जी आटा बेचते हो. उसके लिए आपको ज्यादा रुपए नहीं चाहिए. 1 लाख रुपए चाहिए. वो 1 लाख आपको फ्रेंड्स फैमिली से मिल जाती है. आपको 50 लाख नहीं चाहिए. So what I'm trying to say is, everybody in this world can take a risk of doing something on their own, of taking a decision. That decision could be, मैं 1 साल पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं सिंगिंग करूंगा. पैसा नहीं लग रहा है,
but there is a risk involved कि आप सिंगर भी नहीं बन पाए और आपका पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ. मैं एक्टिंग मैं YouTube पे एक्टिंग सीखूंगा डेली. दैट इज अगेन अ रिस्क. यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर डे टू डे स्कूलिंग, और आप स्कूल मिस करके एक्टिंग क्लासेस ले रहे हो, फ्री की एक्टिंग क्लास ले रहे हो. यू डोंट नीड मनी फॉर दैट. सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रिस्क. और आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, बट बिफोर दैट आई विल वर्क फॉर फ्री विद समवन. लेट्स से ऋत्विक, मे बी ऋत्विक का ड्रीम था वो कुछ बड़ा अपना करेगा, लेकिन क्योंकि वो उस सीखना चाहता है तो उसने ड्रॉप आउट करके मेरे साथ काम किया, उसने सीखा, एंड ही माइट become a star entrepreneur in future. So risk can be self-taught by taking a decision. Doesn't matter if it fails or not, because even if it fails, uska ROI or return on investment, whether money or time, is always higher than what you have invested. So even if clear देखो fails, I will be able to, जो भी मैंने अपना लगाया है उसका 10 times मुझे मिलेगा, I am sure. experience अपना 2 becomes साल very obviously priceless. और उस एक्सपीरियंस का पैसा है, उस एक्सपीरियंस का पैसा है. people will pay you 10 times what you are drawing today if you have built a successful startup and it has failed. I was hearing Kunal Shah, who successfully sold free charge to Axis Bank and now he is running Cred. He said कि यार मैं failed entrepreneurs को ही onboard करता हूँ अपने टीम में. विजय शेखर शर्मा, he always said कि मैं failed entrepreneur को ही लेता हूँ अपने कंपनी में at topmost position, because उसमें attitude तो सही है. फेल हुआ, उसके multiple reasons हो सकते हैं. विजय शेखर शर्मा would have failed 100 times. Kunal Shah would have failed 100 times. I myself had failed 1000 times. But doesn't matter. आप fail ही नहीं करोगे तो यार आप कैसे सीखोगे और कैसे succeed करोगे? And success is never determined by the amount of money you make, or the amount of lectures you take, or the amount of employees in your organization, or the amount of stores you have for Clear Dekho. That is not success. Success is your own definition, what you want to be from where you were. So I think risk is self-taught. Anybody and everybody can take. It does not involve money. This is what I want to say. Yeah. Okay. Yeah. Ravi has some comment, please. Then Atul sir can speak. Yes, Ravi. Yeah. Yes. Hi, everybody. So my definition of risk goes in this way. Risk have two factors which you consider, like the persons who ask the questions, is there any process to calculate the risk, or like how to? Yes, there is a process to calculate the risk in everything, especially in financials. There is a risk calculations process is there, which is model which is there, which is taught in many MBA schools, colleges. Okay, that is there. But apart from this, there's a risk which involves with respect to your decisional risk. Okay, financial risk and then decisional risk depend on two things. One is the capacity. Second is the repercussion. I'll tell you in this way. Capacity means, see, when you know this is a risk, when your capacity falls short, till the times you are aware of your capacity to take it, you will not be at a risk position. The moment for an individual's capacity falls short, he feels it as a risk. Second is the repercussion. Repercussions comes in a way, some decisions you take and there are defined way, like for these decisions, these are the repercussions. And you don't entertain your minds, or you do not nurture your mind to take that repercussions. For example, I'll say you are driving a car at a speed of 100. Repercussion is you might likely to get accidents or not. These are the repercussions. Then in between there will be 10%, 20%, 30%, 40, 50 likely to happen basis on the road and the kind of traffic it has. But if you know, like if I'm driving at 100, there is a repercussions of getting accident. That is 100% for sure. But that repercussions will have a likely effect basis on the road and traffic. So again, you cannot say I'm taking a risk to drive at 100. But at the same time, you need to take a capacity, like how much I am going to have it in terms of my capacity. Either you increase your capacity, so your risk factor will goes down in terms of taking decisions. So that is one point. Second point, financially, there's a lot of model available to calculate the risk, like how much risk I'm taking. So how much, let's say on investment, in talk about any field of financials, maybe stocks, maybe any debenture investments or debt investments, or you talk about any bank. Hedging concepts depends on this risk analysis only. And there are a lot of banks who operates in the world who do hedging. Their primary model is to have a robust risk analysis capacity.
like HSBC and a lot of the bank. You talk about any bank which is running in B2B, like HSBC, all this mortgage, Stanley Mortgage, and all these banks, they have a risk capacity calculations model. Sure. Atul sir, please. Acha, Ravi, you want to add? Okay. Sorry, Ravi. Ravi, you are finished, or you want to add something else? This is my point to add on. Okay. Yes. Atul sir, please. So I just put a quote. I think it has been attributed to Winston Churchill, but many other things. Ki success is about going from failure to failure without losing enthusiasm. वर्ल्ड वॉर में शायद मोटिवेट करने के लिए उन्होंने कोई भाषण दिया था, बट बाद में पता चला कि नहीं, बहुत पहले किसी ने 1935-50 में दिया था. एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट लेसन आई थिंक व्हिच आई हैव, कि फेलियर तो सबको होता है. बहुत बड़े बड़े जो आज के जमाने में जो सबसे बड़े बड़े सक्सेसफुल हैं, दे हैव फेल्ड मेनी टाइम्स एंड फेल बहुत रॉयली फेल किए हैं. जैसे हम लोग अंबानी की बात कर रहे हैं, चाहे मुकेश अंबानी हो चाहे अनिल अंबानी हो, फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है. आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो और फेलियर वर्ड आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप मत कीजिए. रिमेन इन योर सेफ्टी जोन, नौकरी कीजिए, कुछ और कीजिए, बट डोंट इवन थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप विदाउट रिस्क. एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट रिस्क. द ओनली थिंग इज कि हाउ कैन यू हैंडल फेलियर. मोर इम्पोर्टेंटली, फेलियर से भी ज्यादा कि मार्केट आपको सिखाता है, मोर देन एनी books or any business school or anything else. You learn from market. आपके जो customers हैं ना, आपके सबसे बड़े ट्रेनर है. वो आपको फीडबैक देंगे कि आपने ये जो कार बनाया मेरे लिए, मुझे थोड़ा पसंद, देखने में अच्छा नहीं लगता, या इसकी आवाज बहुत ज्यादा करता है, बहुत साइलेंट है, बहुत ना कार बहुत साइलेंट, इतना स्मूथ चलता है कि साइलेंट है, पर कुछ लोगों को चाहिए वो गन 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 जो बाइक में या कार में आवाज चाहिए. तो डिफरेंट लोगों के कस्टमर्स के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, पसंद है, उनसे सीखना चाहिए. और अगर स्टीव जॉब्स की तरह है कि नहीं, कस्टमर को पता नहीं होता है क्या चाहिए, हम जब तक उनको दिखाएंगे नहीं, तो वो भी एक तरीका है कि हमने आईफोन बनाया तब एक ही स्क्रीन पे, मतलब कि फ्लैट स्क्रीन पे इतना अच्छा सब कुछ हो सकता है. तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि एक तो वो दूसरों से सीखते हैं. कभी कभार बहुत सारे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के फेमस है कि इंडस्ट्री को या पूरे सब कुछ को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए. बहुत बड़े वो क्या कहते हैं, इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होता है उनका. वो विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऐसे है दुनिया, ऐसे चल रही है, या जैसे बोला ना कि 100 के स्पीड से चल रही है, बट नहीं, हम ये 100 और 60 के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं. व्हाई कांट वी 1000 के स्पीड पे क्यों नहीं जा सकते. तो सीधा हम लोग यहाँ से स्पेसएक्स टाइप का वो, या क्या कहते हैं, हाइपर लूप के तरह से हम पूरा LA के इस कोने से उस कोने चले जा सकते हैं. तो एंटरप्रेन्योर्स अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ विजनरी एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो दुनिया चेंज करना चाहते हैं, तो वो बड़ा रिस्क लेते हैं. कुछ लोग, सब लोग को जरूरी नहीं बड़ा रिस्क लेंगे. कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मैं छोटा रिस्क लूंगा, एक छोटा सा कुछ करूंगा, फिर उसके बाद मैं उसको ग्रो करूंगा, फिर उसके बाद और ग्रो करूंगा. तो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, हर आदमी अलग है. एवरीबॉडी हैज टू डिसाइड उनके लिए क्या सूटेबल करता है. किसी आदमी को पैसे कमाने का शौक है, किसी आदमी को फेमस होने का शौक है, किसी आदमी को समाज सेवा का शौक है, अलग अलग. और एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट ओनली मेकिंग मनी. सोसाइटी में इम्पैक्ट करना चाहते हैं, वो भी एक है. मैं इनका एग्जाम्पल बार बार देता हूँ. हमारे बिहार के एक हैं बहुत फेमस आदमी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक. उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल स्टार्ट किया, और किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया, लैट्रिन टॉयलेट का बिजनेस स्टार्ट किया. एंड ही इज अ वेरी वेरी रिच गाय आल्सो. आप कहीं भी जाएंगे दुनिया में, तो आपको एक सुलभ का जरूरत सबको पड़ता है कि एक रेस्टरूम मिल जाए. हर जगह गवर्नमेंट वाला नहीं होता है. तो उन्होंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे आज पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए. तो आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं. आप अपने गांव में एक छोटा सा दुकान चलाना, अपने गांव में शहर में एक छोटा सा दुकान चला रहे हैं, पान का दुकान चला रहे हैं, बेच रहे हैं, लोग आ रहे हैं, चाय का दुकान चला रहे हैं, लोग आ रहे हैं. Many people are happy with that. No wrong, nothing wrong with that. हर आदमी बिल गेट्स नहीं बनना चाहता. बहुत आदमी अपनी छोटी सी दुकान में भी खुश है. एंड as long as हम, हर आदमी का हमारा क्या सेटिस्फैक्शन है, पहले भी बोला था, आई थिंक इन्होंने कि अमेरिकन ने तो बोला था कि हर इंसान का सक्सेस का और रिस्क का डेफिनेशन अलग अलग है.
एंड हम लोग को सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। आप बिल गेट्स बन गए, बहुत अच्छी बात है। आप राम भाई पान वाला भी अच्छा आप अच्छा जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पान बेच रहे हैं, बहुत अच्छा पान बेच रहे हैं, एंड दैट्स गुड इनफ फॉर मेनी पीपल। Yes, yes, Neeraj, please. Shyama sir, ठीक है, Neeraj first, then Shyama sir can add. Please, Neeraj. या विशाल, सो अभी कुछ बात हुई कि रिस्क का कैलकुलेशन होता है, हेजिंग होती है, बड़े बड़े एनालिस्ट इस बात को बैठ के डिसाइड करते हैं कितना रिस्क लिया जाता है। तो इंडिया में जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट एपिक फेलियर्स हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, स्टार्टिंग फ्रॉम विजय माल्या टू नरेश गोयल ऑफ जेट एयरवेज टू अनिल अंबानी, तो क्या ये सब लोग वो सब उस तरह की कंसल्टिंग नहीं करते हैं क्या? मतलब उनको पता नहीं होता। अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही अनिल अंबानी ने यूके की एक कोर्ट को बोला है कि मेरे पास 0 एसेट्स है, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मतलब आई एम टोटली बैंकरप्ट, मैं मेरी कोई भी सिग्निफिकेंट एसेट नहीं है जिसको मैं बेच भी सकूं। तो फ्रॉम 42 बिलियन डॉलर टू जीरो मनी, ये सब मतलब इतना बड़ा जो एपिक फेलियर हो जाता है, तो क्या इन लोगों की स्ट्रेटेजी में ही कमी होती है कि कुछ एटीट्यूड में भी दिक्कत रहती है? Yes, Shyama sir, please. I think you can explain this as well as add your comments, please. नहीं, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है एंड belonging to a Bengali family, you know how much risk Bengali can take. So anyway, so I agree with Atul what he was telling. It all depends on the individual appetite, okay, and what is the life purpose he is having. आज रिस्क लेने का मतलब है कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल रिस्क, यू नो, कि मैं बैंकरप्ट नहीं हो जाऊं, मेरा फैमिली दिक्कत में नहीं आ जाए, इस तरह का रिस्क की बात कर रहे हैं. But so it will be largely guided by the purpose which I want to follow in my life. It has to start from there, and on my value system, you know, somebody prefers money, somebody prefers name, somebody prefers something else. So it depends on all those things. So it's not necessary that everybody can become an entrepreneur. And so people who are having a risk appetite, like right now, who was asking this question, that how to build the risk appetite? Neeraj पूछ रहे थे, right? ये तो मेरा ही था. हाँ, नीरज का. Yeah, and it is taught. Saurabh told that it can be self-taught. I agree with that. Yes, but you know, with this, you have to understand yourself first of all, that something what you are going to do, it is really revolving on your life purpose, on your value systems, or you are just following somebody and trying to get into the business. So if you are believing enough into the model, whatever you are trying to do, that yes, इसमें तो definitely होगा, तो उसमें तो, you know, you will be self-starter. Means if that cause is so strong within you, you do not have to go for another motor. You know, it is already there. So you can start yourself, if I'm answering this question properly or not, or if it is satisfying you. Now, coming back to your question that big companies who risk analysis करते हैं कि नहीं, करते हैं, but not like the bankers. Okay. So their risk analysis, for example, Vijay Mallya, I know very well. He was very poor in operation. There was no CEO used to work with him, or even somebody used to join. They were just you know, dummy kind of people. He used to take all the decisions. So I don't think he has ever taken those kind of advices. And similarly, in the business, the external conditions are becoming so much unpredictable today. I do not know what sort of risk analysis can really support any kind of risk taking, you know. So today, if you ask me, Dhirubhai Ambani, whether he had done some risk analysis, I don't think so. And neither I think that Mukesh Ambani is doing tremendous risk analysis to make a decision, the way I have seen.
because when the Jio was coming, it was 2000, I think 2013. 2013 it started. The seed was implanted, and he was trying to move out from petrochemical to the something which he didn't know, and he really invested heavily, and almost 21-22 billion dollars, which was even higher than the hydrocarbon chain. He was losing heavily on petroleum, your exploration. He had taken huge resources from BP. He hired almost 200 people from the West were working in India that time, and it was not doing well, and till date it is not doing well. So whatever BP had told about the mines and all those things, exploration sites, it didn't work. So for the risk analysis part, yes, it goes to some extent, but that is on the big corporates. Here we are talking about the startups who are going to start in a minimum scale. You see, so there, this risk analysis, how much it will work, I'm not sure about it. But the thing is, it will depend on individual interest, and whatever one is trying to do, how much he is believing in that. Like Vishal, if he has started this, he is believing in something. If Saurabh is doing something, he is believing in that. If Manjit is trying to do something, he is believing in that, whatever he is doing. Similarly, yourself. So if that answers your questions, I don't know, but if you ask me, maybe I can clarify. Yeah. So Neeraj ka question, let me elaborate a bit. Neeraj ka question hai, his question is, we do these big companies like Vijay Mallya or जो भी है जो या अनिल अंबानी का ही केस, don't take any consulting, और like उनके पास अकबर के नौरत्न जैसे लोग नहीं है क्या, तो उनके पास आई थिंक श्यामा सर ने थोड़ा सा बताया, मैं थोड़ा और ऐड करता हूँ कि उनके पास है, कंसल्टिंग भी लेते हैं, सब कुछ कराते हैं, बट अल्टीमेटली क्या होता है ना, जैसा कि हमारे एक जीडी में सचिन भी आए थे, उन्होंने बोला कि एक पागलपन, वो जो डिसीजन, अल्टीमेट डिसीजन कौन लेता है, द चेयरमैन, दैट सीईओ, लाइक सो अनिल अंबानी वुड हैव टेकन द अल्टीमेट डिसीजन कि हाँ चलो ये रिस्क एनालिसिस है, ये है, वो है, इतना परसेंट रिस्क है, अब क्या करना है, तो अनिल अंबानी वुड हैव सेड कि हाँ चलो चलते हैं, लेट्स सी, आर्या पार्ट टाइप क्या होता है, तो ऐसे करके ही होती हैं चीजें. And now, I think we have been talking, I think Atul sir has been putting that a lot of times, कि success has many fathers but failure is attributed to only founders. तो वो भी एक चीज है कि कहीं ना कहीं जो लोग फेल हो जाते हैं उनका कोई सैल्यूट नहीं करता है, ये नहीं है, वो नहीं है. अब बहुत सारे आई थिंक कोविड में हमें सिखाया कि जैसे रितेश अग्रवाल का ओयो का मॉडल है, so that was okay till this COVID happens, let's say. अब क्या, अब तो ना उसका जो लॉस में जा रहा था, लॉस तो और 4 गुना 10 गुना हो गया, राइट. अब उसने जो रिस्क कैलकुलेशन किया होगा भी 6 महीना पहले, 4 महीना पहले, कुछ लोगों को ले ऑफ भी किया गया, so that calculation gets null and void, right? So all the risk calculation is done on, let's say, a regression analysis, past kind of thing, कि हाँ हिस्टोरिकली ये हुआ है तो ऐसा हो सकता है. अब फ्यूचर वैसा होगा कि लाइक जियो आया तो पूरा तो उठा के पटक दिया सबको. यस सौरभ, प्लीज. You have some comments. Then Neeraj can add. Yeah. I think risk is a overrated term. Instead of risk, the correct word is investment. Am I audible? Yeah. Yes. Hello. Yes, मेरी आवाज आ रही है? Correct. आ रही है. तो मैं बोल रहा हूँ कि risk is a overrated word. Instead of risk, it should be called investment. अनिल अंबानी ने एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, नहीं काम किया. मैंने इंजीनियरिंग किया, मे भी नहीं काम किया, मुझे सेल्स में आना था. या किसी ने डॉक्टर का पढ़ाई किया, वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सका. तो ये रिस्क थोड़ी है. इट इज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी. somehow due to internal and external factors it doesn't work out. So ये जो बिजनेस, लेट्स से किसी ने बोला नीरव मोदी ने किया, या फिर माल्या ने किया, माल्या ने इन्वेस्टमेंट किया, अब नहीं काम किया उसका इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फेल हो गया. मैंने क्लियर देखो चलाया, लेट्स से नहीं चला, या व्हाटएवर रीजन नहीं चल पाया,
या मैं जिस स्केल में ले जाना था मैं नहीं ले जा पाया, मैंने उसको सेल ऑफ कर दिया, किसी को लेंसकार्ट को बेच दिया मैंने. सो decisions can go wrong on the basis of investment and the choices you make. Risk तो होता ही है, मतलब by default everything is a risk, right? I am living today, आज तो नेचर ने प्रूव कर दिया कि ये भी रिस्क है. ये जो ऊपर पंखा है हमारे, ये जो ऊपर पंखा है, पंखे का हमें एक नया यूज पता चल गया है. सो रिस्क तो हर जगह है. हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है. आई एम वॉकिंग ऑन रोड, वॉकिंग भी एक रिस्क ही है. I am going to a mall जहाँ पे इतने सारे लोग हैं who are affected by corona. That is also a risk. But it is a decision which we make. Sometimes it pays off, sometimes it doesn't pays off. So I would rather call it an investment rather than risk. Correct. Yes, Neeraj, please. ठीक है सर, रिस्क का काफी हद तक कुछ चीजें क्लियर हुई. आई वांट टू गो बैक टू अनिल अंबानी स्पेसिफिकली. जो मतलब कोई भी फाउंडर होता है वो 50 चीजें सोचता है इधर उधर की. और एक जो आजकल अभी कुछ लोगों ने किया है, वो कुछ सक्सेसफुल भी हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, जो बिजनेस और पॉलिटिक्स को साथ में मिला के चलने वाली चीज है. सुभाष चंद्रा फ्रॉम जी इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल. तो उसके बारे में और मतलब स्पेसिफिकली अगर अतुल सर आंसर करना चाहे तो आई वुड लव टू हियर दैट कि जो भी एक फाउंडर है या एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो पॉलिटिक्स की तरफ भी अगर ओरिएंटेशन है तो हाउ टू हैंडल बोथ द थिंग्स, और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहली चीज तो वही है. श्योर. मेरा ऐसा मानना है नीरज कि the biggest entrepreneurship venture anybody can took is politics. पॉलिटिक्स से अच्छा कोई रिस्क ही नहीं, कोई अच्छा रिस्क ही वर्थ टेकिंग ही नहीं है. क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या है कि इतना रिस्की है कि हर इलेक्शन में आपको प्रूव करना पड़ता है, और आपके कस्टमर जो है डिपेंडिंग ऑन किस स्केल पे कर रहे हैं. कंट्री के आप पीएम के रेस में हैं तो 130 करोड़ यूएस में, इंडिया में 30-40 करोड़ यूएस में. तो उतने बड़ा आपका कस्टमर बेस है, और हर कस्टमर कभी भी आपसे नाराज हो सकता है किसी बात से. आपको हर दिन आकर, जैसे कि अभी कोरोना को लेके, कोविड को लेकर जो चल रहा है, तो आप देखेंगे कि इंडिया में मोदी जी को स्टेज पे आके, रोज जाके टीवी पे आके बोल रहे हैं, रेडियो पे आके बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, सारी तरह से बोल रहे हैं कि सावधानी बरतें, बाहर मत जाओ, ये जाओ. बट पब्लिक सुनती है क्या? सबकी अपनी अपनी चॉइस है. किसी को पॉलिटिकल है कि नहीं, मैं चूंकि मोदी बोल रहे हैं इसलिए मैं बाहर जाऊंगा. तो अलग अलग लोग हैं, तो लोगों को कन्विंस करना बहुत हार्ड काम है. तो इसमें बोलता सबसे रिस्की बिजनेस दुनिया में पॉलिटिक्स है, बट इट्स वर्थ टेकिंग. क्योंकि उसमें जो आपका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि दुनिया की जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनका जो बजट होता है ना, किसी भी स्टार्टअप उसके आसपास भी नहीं है. जो यूएस का मान लीजिए इकोनॉमी 14 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन जो भी होगा, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, और उसके जो सीईओ हैं यानी कंट्री के प्रेसिडेंट, या इंडिया की इकोनॉमी मान लीजिए लगभग 2 ट्रिलियन 2.5 ट्रिलियन है, तो उसके जो मालिक है अभी जो सीईओ है नरेंद्र मोदी, हर कंट्री के, या जर्मनी की क्या नाम है अपनी एंजेला मर्केल. तो इनसे बड़ा एंटरप्रेन्योर तो कोई है ही नहीं. कि उनका जो एम्प्लॉय तो नहीं है, बट उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं काफी डाइवर्स हैं, काफी कॉम्प्लेक्स हैं, काफी डिमांडिंग है. क्योंकि मीडिया में थोड़ा कुछ आया और अचानक मान लीजिए कि लोगों की गलती से. तो सर, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं थोड़ा सा रिफ्रेज करना चाहूंगा. जैसे अभी टेकिंग एग्जांपल ऑफ यूएस ओनली, जो ट्रम्प वाला एपिसोड हुआ एंड मार्क जकरबर्ग ने उसको इस तरह से लिया कि कीप मम एंड जस्ट इग्नोर इट, ठीक है. और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बोल भी देते हैं, लिख भी देते हैं, कई कुछ बहुत बड़ा हो जाता है तो गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट भी लिख देते हैं. तो आई जस्ट वांट टू हियर मोर अराउंड दैट कि जो एक स्टार्टअप वाला जो फेज है और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका पॉलिटिक्स और जो ये सब पैरेलली पावरफुल चीजें हैं जिनके अंडर रह के आपको काम करना है, तो हाउ टू मेक दैट रिलेशन, हाउ. हाँ, तो अब मैं उसी पे आता हूँ डायरेक्टली, और जीटीवी का एग्जांपल पे आता हूँ. तो सुभाष चंद्र जिन्होंने जीटीवी स्टार्ट किया, और थोड़ा सा उनका राइट विनिंग, मतलब कि बीजेपी ओरिएंटेड टाइप का उनका पॉलिसी है,
तो उनको लोकल गवर्नमेंट से भी, आज तो खैर उनके बल्ले बल्ले हैं, बट पहले भी उनका जो जो फाउंडर्स होते हैं ना, उनका पॉलिटिकल सिस्टम के साथ प्लस में है या माइनस है, एंड आइदर वे इट वर्क्स। समटाइम्स पॉलिटिकल सिस्टम आपके अगेंस्ट में, मान लीजिए कि आज यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को एलॉन मस्क हो, चाहे जो भी पूरा सिलिकॉन वैली डोनाल्ड मस्क को गाली देता है, पूरा न्यूयॉर्क सिटी के जो वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स हैं वो लोग गाली देते हैं, बट गाली देते हैं तो वो काम कभी कभी वो लोग डेलीगेट कर देते हैं कि खुद नहीं देंगे, किसी और के थ्रू दे देंगे, या उनके खुद के सबसे बड़ा जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या है अभी अपने अमेजन वाले जेफ बेजोस, तो जेफ बेजोस ने बहुत बड़ी पब्लिकेशन को खरीद ली, वॉशिंगटन पोस्ट, ही ओन्स इट नाउ। अब वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखेगा नहीं लिखेगा जेफ बेजोस तुम डे टू डे नहीं डिसाइड कर, बट ही हैज अ मीडिया प्लेटफॉर्म, और बहुत बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, उन सब का अपना अपना मीडिया हाउस में आइदर उनका स्टेक होता है, ओनरशिप होता है, या थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है। क्यों? क्योंकि सारे मीडिया हाउस से चलते हैं थ्रू स्पॉन्सर्स, और स्पॉन्सर्स सबसे बड़े कौन होते हैं? गवर्नमेंट। भारत में दूरदर्शन तो है बहुत बड़ा चैनल, और देखते हैं दूरदर्शन पे जो भी ऐड चाहिए गवर्नमेंट देगी, लेकिन आप जो भी ऐड देखोगे, चाहे आपको वॉशिंग पाउडर चाहिए, चाहे आपको टूथपेस्ट का ऐड चाहिए, अल्टीमेटली जो उनके जो स्पॉन्सर्स हैं, वो प्राइवेट कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, कोलगेट एचएलएल, बट गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्पॉन्सर होता है। आज भी स्वच्छ भारत का ऐड आएगा इंडिया में, या आज कोरोना के लगे जो ऐड आएगा, तो गवर्नमेंट एज ए स्टेक होल्डर को हमेशा आई थिंक कि आप साथ में रखें तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रखते हैं, आप कॉन्ट्रेरियन भी लेते हैं, जैसे कि यूएस में बहुत कॉन्ट्रेरियन है, कुछ लोग कॉन्ट्रेरियन भी हैं, वो भी काफी सक्सेसफुल हुए हैं, एज लॉन्ग एज उनका पोजीशन इतना स्ट्रांग है कि वो गवर्नमेंट के बिना भी चल सकते हैं, और या गवर्नमेंट उनको हिला, उनका इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इतने बड़े पावरफुल है वर्ल्ड में, कि उनके पास खुद इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, गवर्नमेंट उनको ज्यादा कुछ छू नहीं सकती है। तो आप जो सुभाष चंद्र का देखिए, तो सुभाष हार्डकोर बीजेपी वाले हैं, और बीजेपी और उनमें काफी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी है। मेरे एक आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं अनिल गुप्ता, बहुत गवर्नमेंट्स को, भारत सरकार के भी के एडवाइजर्स थे, और बहुत सारी चीजों में है। अनिल गुप्ता जी का सुभाष चंद्र जी के सुभाष चंद्र जी से अच्छा दोस्ती है, तो आपस में, तो अनिल गुप्ता बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड स्पीकर हैं ऑन ग्रासरूट इनोवेशन एंड स्टफ। तो देखना ये चाहिए एंटरप्रेन्योर को कि सरकारें जो है आती जाती रहती हैं, बट एक बात जो बहुत पहले बोला था किसी ने, आपको क्या करना पड़ेगा, या जैसे टाटा का हो या अंबानी का, वो कांग्रेस को भी पैसा देगी, वो बीजेपी को भी पैसा देगी, जो तो एंटरप्रेन्योर्स का भी यही है। एंटरप्रेन्योर्स चाहेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट आती जाती रहे, गवर्नमेंट बहुत फिकल है, हमको तो सबको झेलना है। आज कांग्रेस का कोई स्थिति नहीं, बट हो सकता है कल को आ जाए, तो उनका पार्टी का फंड होता है, इतना पैसा उस पार्टी को, इतना पैसा उस पार्टी को, हर पार्टी को, सारे जो पार्टीज होती है, हर पार्टी को फंड देती है, एंड आई थिंक दैट्स द काफी अच्छा रिस्क डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी या मिटिगेशन स्ट्रेटजी है, कि कोई भी आ जाए पॉलिटिशियन, जो भी पावर में है, हम उसको वो बुलाएगा तो हम उसके पार्टी में जाएंगे, मतलब उसके कोई सभा, मान लीजिए कोई बड़ा सा इवेंट हो रहा है, किसी पॉलिटिकल किसी कंपनी ने बुलाया है, तो अंबानी भी जाएंगे, टाटा भी जाएंगे, हाँ, लेकिन कुछ लोग प्रोफाइल अलग होता है, टाटा का थोड़ा पर्सनालिटी डिफरेंट है और अंबानी का पर्सनालिटी डिफरेंट है, तो टाटा विल से कि नहीं मोदी जी हम इस चीज के लिए आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, अंबानी बोलेंगे कि मोदी जी इस चीज के लिए हम आपसे जुड़ेंगे। तो अलग अलग पर्सनालिटीज है, कहीं के लिए अपना रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक के सामने हमको अच्छा होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। कुछ लोगों के लिए अंबानी जी का कि भैया एज लॉन्ग एज करेंसी नोट आ रहा है आई एम फाइन, तो मेरे को पैसा आना चाहिए, तो मैं सबके साथ हूँ। तो अलग अलग पर्सनालिटीज है, मेरा ऐसा मानना है। होपफुली मैंने आंसर किया नीरज आपके क्वेश्चन को, जो आपने जी टीवी का सवाल जो पूछा था। हाँ सर, मतलब अनिल अंबानी के कंटेक्स्ट में वही है कि उन्होंने भी इवन राज्यसभा ने भी ही रेज्ड विद द हेल्प ऑफ समाजवादी पार्टी एट वन टाइम, तो वो सब उन चीजों का आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उस चीज का भी कुछ इम्पैक्ट रहा, या जस्ट बिकॉज उनका फोकस हटा तो वही एक इम्पैक्ट है। और एक और चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने अनिल अंबानी का एग्जांपल दिया, अमर सिंह ऐसे दोस्ती रखनी चाहिए या दूरी रखनी चाहिए। अब कोई भी पार्टी आए, अमर सिंह जो है वो मुलायम सिंह के साथ भी, इधर साथ अंबानी के साथ भी, तो अमर सिंह टाइप के जो लोग हैं ना वो फिक्सर हैं,
कि अनिल अंबानी को और अमिताभ बच्चन को और सबको साथ मिलाने का काम या मुलायम सिंह को मिलाने का काम तो वो अमर सिंह टाइप लोग करते हैं। तो अमर सिंह टाइप लोगों को पॉलिटिशियंस बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनको अमर सिंह फिक्सर है, बहुत कुछ मिला देंगे, लेकिन साथ में रिस्क भी आता है। अब बैंक्रप्सी हुआ है किसका, अपने क्या नाम है, बहुत बड़ी कंपनी जो उनको इंडिया में आने में दिक्कत हुई, नीरव मोदी ने, एक और दादा बिक गई, माल्या जी, जो विजय माल्या जी। विजय माल्या जी की भी काफी अच्छी दुनिया में दोस्ती थी, बहुतों से दोस्ती थी, किंगफिशर और सुपर मॉडल हो चाहे फिल्म स्टार्स हो, सब जगह पे थे। बट आज उनको जब फंस गए हैं, गलत काम में फंस गए हैं, तो आज विजय माल्या जी को भारत में आने के लिए उनको बहाना बनाना पड़ रहा है, वो आना नहीं, और प्लस यूके के कोर्ट में पकड़े गए तो वो आ रहे हैं। तो जब भी आप गलत काम करते हो ना, तो देयर इज अ चांस कि सूनर और लेटर यू माइट गेट कॉट। तो इसलिए छोटा रहो या बड़ा रहो मैटर नहीं करता है, बट इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना मेरे ख्याल से नो है। और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने एक चीज कहा, उनका वैल्यूज की जो बात की, आई थिंक इन्होंने सुनने कि आपका वैल्यूज सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि आप जो भी रिस्क ले रहे हैं, आपके वैल्यू सिस्टम से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहे हैं। अगर वैल्यू सिस्टम से कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो फिर आप अपने ही नजर में कभी कभी हो सकता है गिर जाओ, और अपनी फैमिली को आप बोलोगे कि मैं कैसे अपना चेहरा दिखाऊं। Yeah, Ravi has some comment. Please, Ravi. Yeah. ओके, तो मेरा ये बोलना है कि रिस्क को लेकर कि नीरज शायद सवाल पूछ रहा था, राइट? हाँ, सो हाँ, रिस्क का कैपेसिटी डेवलप किया जाता है, ठीक है, दैट इज वन पॉइंट। सेकंड वाला जो पॉलिटिक्स के ऊपर में अनिल अंबानी को रिलेटेड, सी मेरा अनिल अंबानी को लेके पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ही वाज नॉट मच ऑफ लाइक, अभी जैसे पैसे मुझे पेरेंट्स से मिल गए हैं, बट डू आई हैव अ कैपेसिटी टू होल्ड दैट मनी और इंक्रीज दैट मनी एज मुकेश डिड? सो वो शुरू से ही वो एपेटाइट नहीं था अनिल अंबानी में। ही स्टार्टेड लूजिंग बिजनेस सिंस बिगिनिंग इटसेल्फ। एक दूसरा, एक जो चीज, ये मेरा पॉइंट पे मे बी पीपल हु आर देयर इन एंटरप्रेन्योरशिप दे विल अग्री कि एंटरप्रेन्योरशिप में एक फैक्टर ये होता है कि यू बिकम अ आइडिया मेकर, लेकिन एट द सेम टाइम्स डू यू हैव अ राइट टीम टू एग्जीक्यूट इट, और क्या आपके पास एक ऐसा टीम है जो उस चीज को फॉलो अप कर सके? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिकमिंग लाइक फुलफिल्ड और बी सक्सेसफुल। और आप देखेंगे मैक्सिमम जो एंटरप्रेन्योर्स है या फिर अच्छे अच्छे बिजनेसमैन है, दे ऑलवेज फोकस ऑन गुड टीम, कि एक ऐसा टीम हो जो मेरे आइडिया को कैरी फॉरवर्ड कर सके और मेटिकुलसली उस डायरेक्शन में काम कर सके। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स में मेनली आफ्टर अ टाइम दे स्टार्ट डायरेक्टिंग ओनली, दे विल नॉट गो इनटू एग्जीक्यूशंस पार्ट, एग्जीक्यूशंस विल ऑलवेज बी डन बाय द टीम्स। बट जो गाइडेंस होता है, बिकॉज ऑलवेज इट हैपेंस कि आप हमेशा अपने पूरे कंपनी के 6 मंथ्स और 1 ईयर के प्लान्स के आगे में वर्क करते रहते हैं, पर आपके कंपनी के बंदे लोग आज के टाइम पे काम, फॉर एग्जांपल अभी इनफैक्ट आई विल टॉक अबाउट सौरभ ओनली। सो सौरभ वुड बी वर्किंग ऑन द कंपनी फाइनेंशियल्स, लेट्स से नेक्स्ट ईयर, मे बी डाउन द लाइन 6 years, what will the company in terms of revenue or in terms of positions, what is the store he is targeting and all those. लेकिन उनके जो अभी कंपनी के बंदे होंगे, वो दे विल बी एग्जीक्यूटिंग द टुडेज प्लान और मे बी मंथ्स प्लान, नेक्स्ट मंथ प्लान, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो इससे भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है कि आप आइडिया मेकर तो हैं, पर यू नीड टू हैव अ टीम आल्सो इन दैट अलाइंड योर आइडिया, सो दैट कि इट कैन कैरी फॉरवर्ड इन मच मोर रोबस्ट वे। तो अनिल अंबानी के साथ में ही स्टार्टेड फेलिंग आउट द मोमेंट ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम the जायदाद। thereafter a lot of companies which he started and fallen down suddenly. रिलायंस पावर फॉल हो गया, उसके बाद टेलीकॉम में तो उनका टेलीकॉम में ही उनका बुरा हाल रहा, whereas मुकेश अंबानी has made telecom today everybody surrender in front of him like that. So depends कि आप एज अ एंटरप्रेन्योर किस स्टाइल में हैं। और बात हुई एक रिलेटेड में, माल्या के रिलेटेड में भी एक बात हुई, और प्लस नीरव मोदी ये लोग, सो दे डिड गुड, बट ये था कि सी आई वांट टू डू वेरी बिग, लेकिन एट द सेम टाइम्स मैं दूसरी तरफ में चोरी भी बहुत कर रहा हूं, जो इन टर्म्स ऑफ लॉ सही नहीं है। तो डेफिनेटली कोई चेंजेस होगा तो आई विल बी कॉट, एंड दैट्स हैपेंड।
माल्या के केस में इट वाज मोस्ट ऑफ द टाइम डेलिबरेट फ्रॉड. आपके पास पैसा है, कंपनी के पास पैसा है, बट यू आर यूजिंग दैट पैसा फॉर सम अदर पर्पस, और कंपनी को आप लेट गो कर रहे हैं. सो डेफिनेटली वन डे इट विल फॉल डाउन. वो चीजें. और तीसरा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है. यस, 100% पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक टाइम के बाद आता ही आता है. आज आप अमेरिका का एग्जांपल छोड़ दीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूँ. रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी, गवर्नमेंट मुंबई में सिर्फ महाराष्ट्र में चेंज हुआ है ना, ही इज इन बिग ट्रबल राइट नाउ. अभी पता नहीं रिपब्लिक टीवी चलेगा या फिर इट इज गोइंग टू शट डाउन, लाइक दैट इट इज हैपनिंग. So he is going under a tremendous In fact, pressure. he's going to benefit quite actually, क्योंकि Maharashtra government is much smaller than Bharat government. So Republic TV. But right now, sir, he is facing lot of trouble. अतुल सर, हाँ, but India में वो कोर्ट सिस्टम है. अतुल सर, लेकिन रिपब्लिक में क्या हो रहा है ना, उनके जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा रेजिग्नेशन हुए हैं पिछले 2-3 दिन में. तो somehow he is in trouble. He is in big trouble right now. पता नहीं वो सर्वाइव कर जाते, it would be good, otherwise there is a big problem he is going to face. हाँ, एक्सटर्नली जो भी है वो तो है ही, इंटरनली जो भी बाहर से प्रेशर है या कुछ भी है, लेकिन उसके लोग बहुत छोड़ के जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा उसके लिए नेगेटिव फैक्टर है. तो ये भी एक देखने वाली स्टोरी होगी. नहीं, अग्री. और इसी तरह किसी स्टार्टअप पे भी मान लीजिए कि अगर उसके बुरे दिन आते हैं तो बहुत सारे लोग कट छोड़ के चेंज करेंगे, भागेंगे. तो आपने बोला अगर ऐसा है कि उसके लोग छोड़ रहे हैं तो मे बी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहरी लोग नहीं बोल रहे हैं, अंदर के लोग जब उनको सब पता है. लेकिन द थिंग इज कि रिपब्लिक टीवी इस लेवल पे अगर पहुंच जाता है, क्योंकि नेशनली उनका ग्लोबल ऑडियंस भी, क्योंकि ऑनलाइन भी एक चैनल है उनका, राइट. ऑनलाइन भी बहुत लोग देखते हैं. मैं तो ऑनलाइन देखता हूँ रिपब्लिक टीवी रेगुलरली, रिपब्लिक भी देख लेता हूँ, एनडीटीवी भी देख लेता हूँ. तो आप लोगों को पता होगा कुछ साल पहले बहुत प्रॉब्लम में ये लोग फंसे थे. बहुत पॉपुलर टीवी एंकर हैं रवीश कुमार, दूसरे पॉपुलर एंकर हैं प्रणय रॉय, बरखा दत्त. तो ये सारे जो आपकी टीवी के जो ऐड, मैं चूंकि मीडिया में काफी मैं इंटरेस्ट रहता है और मैं बहुत लोगों को पर्सनली भी लोगों को जानता हूँ. तो मीडिया क्या है कि पॉलिटिक्स और मीडिया और पैसा साथ साथ चलता है, मनी मीडिया मार्केट. तो उसमें क्या है ना कि आज बुरे दिन चल रहे हैं या चल रहे थे, लेकिन आप देखोगे कि वो सारे चैनल्स भी बहुत सारे बंद हो जा रहे हैं या बंद हो रहे हैं. न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन, उनके टीवी चैनल्स का सब्सक्रिप्शन डाउन हो जाएगा. साउथ में बहुत अच्छा एग्जांपल है. जो भी वहाँ का पॉलिटिशियन होता है उसका अपना एक टीवी चैनल भी होता है. क्या नाम है उनका, नाम बोल रहा हूँ, जिनका काफी सूर्या टीवी और कोई ना टीवी, मारन ब्रदर्स का. तो मीडिया, पॉलिटिक्स, मनी, ये तीनों बहुत रिलेटेड होते हैं. अभी हो सकता है हमको लग रहा हो कि रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी प्रॉब्लम में, ये भी हो सकता है अर्नब गोस्वामी का करियर काफी ऊपर चला गया, क्योंकि वो भी एक जमाने में टाइम्स नाउ ग्रुप के पार्ट थे. उनको अपना अलग चैनल खुला ही रिपब्लिक टीवी, क्योंकि उनको काफी उनके हेटर्स बहुत हो गए, उनके लवर्स भी अकॉर्डिंगली बढ़ गए. तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में रिपब्लिक टीवी को या अर्नब गोस्वामी को फायदा होगा, क्योंकि अभी अगले 4 साल तक तो उनकी फेवर की पार्टी है सेंटर में. तो स्टेट लेवल पे कुछ करेंगे भी. तो आपने देखा होगा दिल्ली में जैसे ये केजरीवाल का गवर्नमेंट है, केजरीवाल इज हार्डकोर अगेंस्ट मोदी. वो खुद में भी एक जमाने में पीएम बनना चाहता था. तो अभी दिल्ली में केजरीवाल की हालत इतनी खराब हो गई कि यू हैव टू गो एंड मीट अमित शाह कि बॉस प्लीज बचाइए, मदद कीजिए. तो इवन दो इंडिया फेडरल है, स्टेट और सेंटर का अलग अलग पावर है, पंचायत के पास भी पावर, सेंटर के पास पावर है, बट सेंटर के पास आज भी ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर. तो मेरे ख्याल से अगर आप सेंटर से पंगा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा प्रॉब्लम है. आप अपने गांव में आप मुखिया हैं, आपको जिसको गाली देना दीजिए, बट आप कंट्री के पीएम को, और पूरी वर्ल्ड में यही है कि आप हेड ऑफ द कंट्री को अगर आप पंगा लेते हैं थोड़ा ज्यादा बड़ा रिस्क है. Sir, I am have a little different perspective here. Let's consider Republic TV and Arnab Goswami separately. होता क्या है ना, मीडिया में आप इंडिविजुअल की जो एक पहचान है उसको नहीं मिटा सकते, उसको किल करना बहुत मुश्किल है. जो भी आपने रवीश का एग्जांपल लिया, वो सब इंडिविजुअल्स हैं. बरखा दत्त इंडिविजुअली सर्वाइव किया है, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं इस सिस्टम में. खासकर इंडिया का भी जो सिस्टम है, जो भी आपके पास पावर्स हैं, एजेंसी जो आप पीछे लगा देते हैं लोगों के.
मैं कहने को ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल जाता है, जैसे कि अर्नब गोस्वामी आज रिपब्लिक टीवी, पहले वो टाइम्स नाउ के थे, तो वो तो आज रिपब्लिक टीवी का कुछ कल को हो सकता है कि डेमोक्रेटिक टीवी बना देंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं। उनका ब्रांड खुद में बहुत बड़ा बन गया है, अर्नब गोस्वामी का एक अच्छा ब्रांड बन गया, उनका एक नेटवर्क हो गया, तो वो रहेंगे, नाम बदलते रहे, कंपनी का जो लीगल एंटिटी का नाम बदलते रहेगा। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन आता है सर अनिल अंबानी के रिगार्डिंग। अनिल अंबानी की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी अभी हाल फिलहाल एक क्वेश्चन उनके साथ चलता है राफेल डील वाला, ठीक है, कि राफेल डील में उनका सिर्फ क्या क्या रोल प्ले था, और उसके चलते क्या पॉपुलैरिटी के लाइक जो उनका था शायद डी से कुछ उस कंपनी का नाम था, ठीक है, तो अनिल अंबानी उसमें क्या रोल प्ले कर रहे थे, और उतनी बड़ी डील होने के बाद भी उनकी जो लोन्स वगैरह थी उसको फैक्टर में काफी कम क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। अभी उनका काफी सारे लोन्स अगर बात करते इलेक्शन वाला पे चल रहा था, तो एज ए एथिकल उनका डिस्टर्ब होता है, लाइक एथिकल उनका प्रॉब्लम है, या फिर उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो धीरे धीरे डाउन होते जा रही है, इसलिए इनको जो है डील पे काफी लोग इस पे केस करते जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा मुझे अच्छे से जानना था सर। विशाल, कैन आई टेक अ बिट? मतलब इसमें राफेल स्पेसिफिक अगर अनिल अंबानी वाला कनेक्शन को हम थोड़ा सा स्टडी करें, तो उसमें क्या था कि जो मैंने बताया था ना कि पिपाव डिफेंस करके उन्होंने जो कंपनी था, जो कि बेसिकली शिपयार्ड थे, जिसके शिप मैन्युफैक्चरिंग में था और कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी में वो काम कर रहे थे, तो अनिल अंबानी ने उसमें इन्वेस्ट किया एंड ही चेंज द नेम टू रिलायंस डिफेंस। और इंडिया में कुछ सेक्टर्स में एफडीआई पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, एंड स्पेशली डिफेंस तो क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें अगर किसी को बाहर से पैसा लगाना है, टेक्नोलॉजी लेके आना है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अपना एक इंडियन पार्टनर ढूंढना होगा। आप डायरेक्टली पूरा का पूरा 100% अपना बाहर से स्पॉन्सरशिप लेके इंडिया में उस चीज में काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर अपना देश की सिक्योरिटी के लिए एक इशू है। तो अब बात शुरू होती है कि राफेल इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का प्लान था, जो फ्रेंच कंपनी जो उसको बनाती है, तो उसमें उन्होंने एज अ पार्टनर इंडिया में दे वर सर्चिंग फॉर कि कौन लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ के हमारा इसमें इंडिया में हमारे यूनिट्स वगैरह में साथ दे सकते हैं। तो उन्होंने ढूंढा रिलायंस को। अब वो कैसे ढूंढा या उनको दिया गया, उनको प्रपोज किया गया, वो एक सेपरेट स्टोरी है। लेकिन रिलायंस का अभी आज के जमाने में जो भी हुआ है वो अलग बात है, लेकिन 4-5 साल पहले तक इतनी मार्केट में इतनी ओपन नहीं थी सिचुएशन अनिल अंबानी के बारे में भी। और रिलायंस बीइंग अ बिग नेम और उन्होंने इतने बड़े बड़े बिजनेस चलाए हैं, तो सबको वो सूट भी करा होगा शायद बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो उस चक्कर में उनका नाम उनके साथ जुड़ा और उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स कोलैबोरेट टुगेदर और हम इंडिया में काम करते हैं साथ में। लेकिन बाद में जैसे जैसे फिर अब क्योंकि डिफेंस का सारा होना था, उसमें गवर्नमेंट परचेजिंग है, गवर्नमेंट ही क्योंकि मेन उसमें आपका कस्टमर होता है डिफेंस इक्विपमेंट्स में। तो अब बाद में फिर जब डील हो गया तो फिर सारी पॉलिटिक्स शुरू हो गई इसके अराउंड कि अनिल अंबानी तो मोदी के आदमी हैं और मोदी ने सारा उनको पैसा दे दिया है, और इस वजह से ये सब राफेल की जो डील हुई है उसमें भी वो घपला जो भी हुआ है, जो भी बोला गया, मतलब तो वो सारी बातें उसके साथ एक साथ जोड़ के और वो खिचड़ी पका दी गई। और फिर बाद में कि अनिल अंबानी डूब भी रहे थे, उनको सपोर्ट भी करना था, गवर्नमेंट ने अपना पैसा देके उनको सपोर्ट कर दिया, तो वो सारी एक खिचड़ी बना के पेश कर दी गई। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो पता नहीं, कभी आएगी भी नहीं कि सामने नहीं आएगी। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यही था कि एफडीआई जो बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती हैं वो डिफेंस में 100% नहीं आ सकती हैं, तो उसमें इंडियन कंपनी को किसी को साथ होना था और उसके लिए अनिल अंबानी को आगे किया गया या उनको चुना गया। ठीक है, मैं थोड़ा इस पे इनपुट दूंगा। क्लियरली लाइन ऑफ एक्शन यही था कि जब राफेल डील हुआ था तो राफेल डील में एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी था ऑफसेट का। तो ऑफसेट का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि जब मैं गुड्स इन सेल्स, मतलब कि मैन्युफैक्चर नहीं करना, डायरेक्ट गुड प्रोड्यूस हो गया, मैं सेल कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जब एक्वायर करती है तो उसके मशीनरीज के जो एसेसरीज होते हैं, कल वो मशीन खराब हो रहा है तो वो वापिस नहीं जाएगा, पर उसके इक्विपमेंट्स यहाँ पे इंडिया में कुछ कंपनी है जिसको वो पर्टिकुलर अमाउंट्स वैलिडेट करके रख दिया जाता है कि जब वो चीजें आएगी तो वो कंपनी इनको सप्लाई करेगी, इन टर्म्स वो चीजें गवर्नमेंट को सप्लाई होगी। दिस इज हाउ दिस ऑफसेट थिंग्स टेक्स प्लेस। तो वो
ऑफसेट जो अमाउंट है इसके लिए सिर्फ अंबानी की कंपनी नहीं थी, देयर इज 64 कंपनी इन दैट लिस्ट जिसको वो ऑफसेट अमाउंट आना था। 8,000 करोड़ का जो भी अमाउंट था वो 8,000 करोड़ में 64 इंडियन कंपनीज है, उसमें HUL भी है ऑफसेट के लिए, जिसमें वो आना है अमाउंट्स, और आया है। इनफैक्ट अभी तो वो डील हो गया है और वो आ गया है। उसमें से एक अंबानी की कंपनी है जिसको कुछ समथिंग 30 समथिंग करोड़ आने थे। सो दैट इज वन ऑफ द रिलायंस कंपनी। लेकिन अभी रिलायंस प्रॉब्लम में था और मे बी एक पॉलिटिकल वेंडेटा में वो चीजें सामने में आ गई कि रिलायंस को फायदा जा रहा है, बट देयर 64 कंपनी हु आर देयर इन दैट MPLL लिस्ट who will be taking the offset amounts to India from that Rafale company. तो वो एक जस्ट पॉलिटिकल वेंडेटा का इशू था, देयर इज नथिंग लाइक अंबानी और फेवर। वो ऑलरेडी इनफैक्ट रिलायंस की जो कंपनी है वो ऑलरेडी 5-6 साल पहले से ही राफेल के साथ में डील स्टार्ट होने, जब कांग्रेस का ही चल रहा था तभी से वो ऑलरेडी एम्पेलेंट थी, वो जान रही है कि वो अपॉर्चुनिटी आने वाला है, तो वो लोग अपना ऑलरेडी एम्पेलमेंट करा रखे थे ऑफसेट के लिए। दिस इज एज पर माई नॉलेज। और ये चीज है पब्लिश हुई थी हिंदू में, द हिंदू में, जो चेन्नई की अखबार है, काफी लेजिटिमेट अखबार है। सो इसमें ये चीजें आई रेड अबाउट इट एट दैट टाइम। Sure, I think बहुत सारे चीज तो पता भी नहीं चल पाता है हमें। I think it's what is in the news, that thing we only come to know. एक चीज political पे I would like to say, I mean I would like to add rather. So I think जो startup है या entrepreneurs है, they should try to stay as far as neutral in these things. क्योंकि अगर किसी साइड भी गए तो दूसरे साइड डंडा पड़ सकता है। श्यामा जी आप प्लीज बताइए। Yeah. So coming back to Neeraj, I think Neeraj is very particular about this, right? Now, Atul already talked about it, and Vishal also touched. So I think in an ecosystem, you can't, manage your business without any sort of contact with the political environment, especially in India. And वो तो होना ही होना है. But one has to be very careful. Like Amar Singh and Anil, that duo, it went little ahead actually. He should not have gone that far. Whereas Mukesh Ambani, he manages so nicely. Even the political parties come to the office, Reliance office, even the senior executives ask them to sit for half an hour. He said, I'm busy. So they manage in such a way कि media also doesn't get into attention and all those things that he is. Have you seen any time that Mukesh Ambani is within some political leaders, some picture is coming and all those things? You will never see. हाँ हो सकता है मोदी जी जा रहे हैं बाहर तो he will be in the ambassador team as a नहीं businessman. उनकी शादी में just want to add कि जब उनकी बेटे की शादी जब हुई तो सारे पार्टी के लोग आए, सारे बिजनेसमैन भी आए। हाँ सारे आए। That's what they use it for. So उसमें तो so he calls everybody then. So it is not that he is just inclined to one particular party or person like that. So it has to be taken care of very nicely, especially for the startups in Indian ecosystem. One has to take care of these political parties very nicely. Means you have to communicate in a way that neither you are in too much of their favor or you are opposing something. And if they are asking chanda and all those things, try to negotiate and give it. That's what the situation is here. थैंक यू श्यामा सर। कहीं ना कहीं मैं भी सुनना चाह रहा था यही चीज। विशाल जी I understood you. विशाल जी एक चीज जो ये श्यामा सर कुछ बोल रहे थे। हाँ इसमें एक जो था ना ये मैं बोल रहा हूँ, ये जो रिस्क का रिस्क और इन्वेस्टमेंट व्हाटएवर वी से, आज का जो सीन हो गया है तो रिस्क तो सभी को लेना पड़ेगा। टुडे इफ अतुल हैज गॉन टू यूएस, ही हैज टेकन अ ह्यूज रिस्क। इसको पूरा लाइफ को पूरा अनसेटल करके इंडिया से वहां पर जाके सेटल होना,
नहीं, अतुल सर को वापस लाने वाले हैं जल्दी। So when I have moved from one country to another country, from one assignment to another assignment, this that, risk तो लिया ही है, risk तो आज किसका नहीं होता है। So I was talking about that रिस्क लेता है इंसान। शादी करके बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, तो because ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला, सबसे बड़ा लाइफ का रिस्क है when you get married, क्योंकि उसके बाद बच्चे एंड ऑल लाइक कंटिन्यूस बेसिक रिस्क। तो शादी वाला जो रिस्क है ना, उसको बिजनेस की लैंग्वेज मर्जर एंड एक्विजिशन भी बोल सकते हैं, एमएनए करते हैं। तो आज के जो सिचुएशन हो गया है, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन जॉब, बेटर टू टेक रिस्क इन बिजनेस, दैट मच आई शुड से, बिकॉज नौकरी में भी रिस्क हो गया अभी भाई। It's not that you are going to continue in the same job for years and years. It's not going to happen. So better to be your own boss and take the risk, calculated risk, what we discussed in the forum very nicely, and try to see that what purpose you have, what value system you have, what model you have. If you are believing enough, go ahead, I think. हमारे आपने दिल खुश कर दिया कि ये जो आप This what you said ना, कि बहुत लोग सोचते हैं कि जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब बहुत सेफ्टी नहीं। ना सरकारी जॉब में भी ले ऑफ्स हो रहा है, प्राइवेट जॉब से भी ले ऑफ्स हो रहा है। अभी कोरोना आया तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने थाउजेंड्स में ले ऑफ किया। बचे वही लोग हैं जिनका कि था, उनका रिस्क डाइवर्सिफाइड था, साथ में उनका अलग से साइड बिजनेस या कुछ और चीज कर रहे थे वो। Absolutely. नीरज, there is a जो श्यामा सर ने कहा कि सबको जॉब करना चाहिए और अतुल जी ने उसको सपोर्ट किया। मेरा इसमें बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि there is a dark side of doing your own business, so one should be prepared for it. It is not everyone's, क्योंकि there are a lot of sacrifices one has to make, so one should be ready for those sacrifices. If they are going for something big. नहीं, और उसमें काफी लंबा टाइम लगता है पता चलने में कि आपका बिजनेस चलेगा अभी कि नहीं चलेगा। और वो साल आपके चले गए, आपका क्रीम ऑफ योर पीक पीरियड ऑफ योर लाइफ आपने जॉब में दे दिया, और बाय द एंड फिर कि नहीं जॉब नहीं, देन यू वांट टू गो बैक टू द जॉब मार्केट। वहां भी हो सकता है कि आपके लिए गेट खुले नहीं हो, क्योंकि वहां पे उनको यंग आप ही के जैसे लेकिन आपसे ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा जवान बच्चे मिले, young people. So most companies would like to have those people at a lower cost, younger in age, latest and current. So आप 40s में या 50s में या 60s में if you want to go back to the job market is very very hard, very very hard. चलिए ठीक है, आज का टाइम ओवर। विशाल जी एक क्विकली कल के लिए मतलब अगर if you want to continue तो एक लिंक जो बिजनेस और बॉलीवुड का है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मैं। हम एक आदमी को भूल गए बातों में, सहारा वाले जो सुब्रतो जी हैं, उनका अमिताभ बच्चन जी का उनके साथ भी अच्छा रिलेशन था, अमिताभ बच्चन जी का अनिल अंबानी के साथ भी अच्छा रिलेशन रहा है, सबने देखा है। और आजकल अमिताभ बच्चन जी जब मोटा भाई मुकेश अंबानी के यहाँ भी कुछ फंक्शन होता है तो सबसे आगे खाना बांटते हुए दिखते हैं। तो लेकिन हाउ मोटा भाई हैज मैनेज्ड इट इन अ डिफरेंट वे, और बाकी जो पहले वाले 2-3 लोग जो एपिक फेलियर हुआ है जिनका, उन्होंने उससे क्या गलती की है। कहीं ना कहीं मार्केटिंग के लिए आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हमेशा जरूरत है अपने बिजनेसेस को बड़ा बनाने में, लेकिन मोटा भाई ने वहां पे मेरे को लगता है कि जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि शादी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उसमें उनकी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है उसको मैनेज करने में, तो थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर सकते हैं अगर। तो कल आई थिंक मैंने सोचा है कि डिप्रेशन सुसाइड पे थोड़ा जनरलाइज्ड करेंगे, आई थिंक बिकॉज़ आज भी ग्रुप में बोल रहे थे कुछ लोग, तो कि चलो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझते हैं। That's a very big subject. More like mental health and things, and we will touch non-business aspect also. और विशाल, नीरज, जब भी इन पे बात होगी ना सहारा पे, तो मेरे पास काफी कुछ रियल एग्जांपल मैं दूंगा। चलो ठीक है, एक आदमी को चुन के केस स्टडी करेंगे हम लोग बारी बारी। ठीक है चुन के मारूंगा, होता है ना। चलिए, गुड नाइट आज के लिए। ओके, गुड नाइट। ओके, बाय।